Hello students, today we will compile our lesson 6 of Beehive book that is My Childhood. Come to the page number 70. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Means APJ Abdul Kalam's second friend Arvindan, when he grew up, went into the business of arranging transport for pilgrims. Pilgrims mean the passengers who went for religious purpose generally. जो धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं. एंड शिव प्रकाशन बिकेम आ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे. और जो शिव प्रकाशन है वो साउदर्न रेलवे के अंदर कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लग गए. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family means Kalam's family used to arrange boats with a special platform for carrying idols. Idols क्या होती हैं? जो भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, of the Lord from the temple. टेम्पल से कहाँ ले जाते थे? to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. Means जो श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी एनुअली, तब कलाम की जो फैमिली होती थी बोट का अरेंजमेंट करती थी. किसके लिए? भगवान की प्रतिमाओं को ले जाने के लिए मंदिर से मैरिज साइट पर, जो कि कहाँ होती थी मैरिज साइट? पोंड, इन द मिडल ऑफ द पोंड कॉल्ड राम तीर्था, विच वॉज, जो कि उनके घर के नज़दीक था. इवेंट्स फ्रॉम रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Means जो कलाम family belonged to Muslim, but even then his mother, grandmother told Kalam the stories of Ramayana. Ramayana means जो आप हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो रामायणा है वो हमारे हिंदू ग्रंथ में है, तो फिर भी उनकी जो मदर थी ऐसा नहीं सोचती थी कि हम मुस्लिम्स हैं तो हिंदूज़ की स्टोरीज़ को नहीं सुनाना, फिर भी वो रामायणा की स्टोरी सुनाते थे. और प्रोफेट क्या होता है? इंस्पायर्ड टीचर्स. जो ये इंस्पायर्ड पर्सनस होते हैं, महान महान ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, इवन देन दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज. इवन देन कलाम्स मदर एंड हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम स्टोरीज. One day when Kalam was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School, means when he was studying in Rameshwaram Elementary School in 5th standard, a new teacher came to his class. He used to wear a cap. Kalam used to wear a cap because he belonged to a Muslim community. So which marked me as Muslim, जिससे उसको पता चल जाता था कि भी इसने कैप पहन रखी है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है. एंड कलाम ऑलवेज सेट फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनंदा शास्त्री. जो रामनंदा शास्त्री हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, वो उसके साथ बैठते थे. हु वॉर द सैकर्ड थ्रेड. सैकर्ड एक थ्रेड होता है बेटा, जनेऊ जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो जनेऊ डालते थे, जैसे वो ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते थे. द न्यू टीचर could not stomach मतलब could not tolerate a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramnada Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. Means when the new teacher came in his class, at that time Kalam was sitting with his Hindu friend. At that time that new teacher could not tolerate that कि different communities students sit together. At that time Kalam was asked to leave that bench and go on the back bench. He felt very sad, and Ramnada Shastri was also very sad, and he looked utterly downcast. उनको क्या लगा कि बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए. वो उनके जो फ्रेंड थे वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए जब वो कलाम जो है वो लास्ट वाली रो में चले गए. दोनों
कि जो फेसेस थे वो उतर गए, बिल्कुल परेशान हो गए. आफ्टर दे वेंट होम एंड टोल्ड देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने अपने पेरेंट्स को ये सारी बात बताई अबाउट द इंसिडेंट. लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher. Lakshman Shastri called the teacher and in our presence, means in Kalam and his friends' presence, he told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. कि उसने टीचर को समझाते हुए कहा कि जो आप सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, और कम्युनल और जो सांप्रदायिक ये भेदभाव है, ये बच्चों के अंदर इसका पॉइजन मत डालो, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो इनोसेंट हैं, उन्हें नहीं पता कि हिंदू कम्युनिटी क्या होती है, मुस्लिम कम्युनिटी क्या होती है, क्योंकि गॉड ने सबको एक जैसा बनाया है. ये कम्युनिटीज़ तो यहाँ पर आकर ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं. तो उन्होंने इस टीचर को समझाया. ही ब्लंटली आस्क्ड, ही क्लियरली आस्क्ड, ब्लंटली मीन्स क्लियरली आस्क्ड द टीचर टू आइदर एपोलोजाइज, एपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, या तो तुम माफ़ी मांग लो, और क्विट द स्कूल, या स्कूल छोड़ दो. क्विट होता है लीव द स्कूल एंड द आइलैंड. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, कि ना तो केवल टीचर ने अपनी बिहेवियर के लिए सॉरी फील किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के इस बिहेवियर से उस टीचर के अंदर अल्टीमेटली रिफॉर्म होता है चेंज, जो पॉजिटिव चेंज आया, और उन्होंने सॉरी फील किया, और उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर he will not communicate any type of social inequality among the innocent students. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. Means totally जो small society थी रामेश्वरम की was very rigid बहुत थे, कट्टर थे वो, कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को सेपरेट कर रखा था उन्होंने. हाउएवर माई जो साइंस टीचर हैं शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ कंजर्वेटिव वाइफ, वो तो बिल्कुल ही अपने ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, बट जो उनकी वाइफ है शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मीन्स वो भी अपने बस धर्म के अकॉर्डिंग रहने वाली है, दूसरे धर्म के लोगों को अपने इक्वल नहीं समझती. वो समथिंग अ रेबल, रेबल होते हैं विरोधी, विद्रोही. He did his best to break social barriers so that people from very background could mingle easily. और जो टीचर हैं शिव सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाया कि जो ये सोशल बैरियर्स हैं इनको ख़त्म किया जाए. उन्होंने तो अपना बेस्ट एफर्ट्स लगा के ही यूज़ टू स्पेंड्स आर विद मी. जो शिव सुब्रमण्य अय्यर हैं, साइंस टीचर हैं, वो जो है पूरा उन्होंने एफर्ट्स लगाया मेरे साथ मिलकर कि इस तरह के जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो समाज से ख़त्म कर दिए जाएं. एंड वुड से कलाम, he also said to Kalam, he wants you to develop so that you are on par, कि मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो, क्योंकि तुम जो हो फर्स्ट क्लास, बिल्कुल तुम फर्स्ट क्लास को बिलोंग करते हो, तुम्हारे अंदर इतनी इंटेलिजेंसी है, विजडम है, तुम सोसाइटी को चेंज कर सकते हो. विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. वन डे science teacher invited Kalam to his home for a meal, for taking food with him. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine होता है to take dinner in her ritually pure kitchen. जैसे हिंदू ब्राह्मण कम्युनिटी के पर्सन्स हैं वो अपनी किचन को बिल्कुल प्योर रखते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, अपने धर्म कर्म के अनुसार अपनी किचन को गंदा नहीं करते. इस प्रकार से जो उनकी वाइफ थी वो भी डर गई कि एक मुस्लिम बॉय को मैं अपनी किचन में कैसे खाना परोसूंगी. शी रेफ्यूज टू सर्व कलाम इन हर किचन. उसने अपनी किचन में कलाम को खाना सर्व करने से मना कर दिया. शिव सुब्रमण्यार वॉज नॉट पर्टर्ब्ड बट ही वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू हिज वाइफ बिहेवियर. अपनी वाइफ के बिहेवियर से वो परेशान नहीं हुए. नो डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही उससे गुस्सा हुए, बट इंस्टेड सर्व्ड कलाम with his own hands and sat down beside him to eat his meal. और बल्कि उसको सर्व भी किया, उसके साथ बैठकर खाना खाया. His wife was watching
all the incident behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way, कि उन्होंने क्या डिफरेंस देखा जब वो खाना खा रहे थे, जिस प्रकार से उनके हस्बैंड खाना खा रहे थे जो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और जो अब्दुल कलाम है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो दोनों एक तरीके से खाना खा रहे हैं. आई एट राइस, ड्रिंक वाटर, क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील, और उस प्रकार से खाना खाने के बाद उन्होंने भी अपने फर्श को साफ़ किया. When I was leaving his house at that time, after taking dinner, when he was leaving, Shiv Subramanya Iyer again invited him to join for the dinner next weekend. दोबारा से उनको invite किया next weekend पर. Observing my hesitation, उन्होंने देखा कि ये तो hesitate feel कर रहा है आने में, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको खाना सर्व नहीं किया था. He told me not to get upset, saying once you decide to change the system, कि परेशान मत हो, अगर तुम सिस्टम को चेंज करना चाहते हो तो such problems you have to face. confronted means faced, कि तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी. When Kalam visited science teacher's house next week, at that time teacher's wife took Kalam inside her kitchen. अब इस बार जो है सेकेंड टाइम जब वो उनके घर डिनर पर जाते हैं वीकेंड पर, तो जो उनकी वाइफ है वो उनको किचन में ले जाती है अपने, और अपने हाथों से खाना सर्व करती है. आफ्टर दैट देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ओवर हो चुका है. आफ्टर दैट इट इज़ क्लियर दैट इंडिया वुड बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, कि अब इंडियंस जो हैं वो अपना भारत बनाएंगे. डिक्लेयर्ड गांधी जी. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. अनप्रेसिडेंटेड होता है नेवर हैपेंड बिफोर. ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी. इस तरीके की पॉजिटिविटी आई जो कि कभी नहीं आई थी द होल कंट्री के अंदर. आई आस्क्ड, द कलाम आस्क्ड हिज फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम. अब जो कलाम है वो अपने आप को और ग्रो करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली टू लीव रामेश्वरम. रामेश्वरम को छोड़कर कहाँ पढ़ने के लिए? रामनाथपुरम में. स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द रामनाथपुरम. ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड. आफ्टर थिंकिंग हिज फादर सेड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि तुम्हें अब अपने आप को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोस्पेर करने के लिए जाना होगा. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन. क्या सीगल जो है, सी बर्ड है, क्या वो सन के अक्रॉस फ्लाई नहीं करता? अलोन विदाउट अ नेस्ट, जबकि उसके पास वहाँ नेस्ट भी नहीं होता, अकेला ही फ्लाई करता है. ही कोटेड खलील गिब्रान, रिपीटेड, कोटेड मीन्स रिपीटेड, खलील गिब्रान. खलील गिब्रान की जो वर्डिंग्स हैं वो बताई. मेरी हेजिडेंट मदर को, जो उनकी मदर हैं, वो नहीं चाहती थी कि जो कलाम है वो रामेश्वर छोड़कर हेडक्वार्टर्स में पढ़ाई करने के लिए जाएं. फिर भी उनके फादर ने उनकी मदर को समझाते हुए कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे जो बच्चे हैं अब वो तुम्हारे बच्चे सिर्फ बच्चे ही नहीं रहे. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स नाउ. अब वो सन्स और डॉटर्स हैं ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, अपने जीवन जीने के हकदार हैं. दे कम थ्रू यू, हालांकि तुमने उनको पैदा किया है, बट नॉट फ्रॉम यू, बट वो तुम्हारे जैसे तो नहीं बनेंगे ना, वो अपने आप को ग्रो करेंगे. बाहर जाना पड़ेगा उनको, अकेला रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को समझना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. दे यू मे गिव दैम योर लव, कि तुमने उनको, उनकी मदर को समझाया कि तुमने उनको बहुत अफेक्शन दिया है, बहुत टेक केयर किया है उनका, बट नॉट योर थॉट्स, बट जो तुम्हारी थॉट्स हैं उनकी थॉट्स से डिफरेंस है. क्यों है? क्योंकि एज ग्रुप का डिफरेंस है. जो एक थिंकिंग होती है ओल्ड एज की, वो एक यंग पर्सनस की नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. अब मैं इन वर्डिंग्स को एक बार आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. When Abdul Kalam asked his father for permission to leave Rameshwaram and study at district headquarters of Ramnathpuram, his father did not get upset. He said that he knew Kalam was to go away to grow. He was a wise man and was aware of the harsh reality of life. He knew
A seagull crosses the sun alone, कि जो seagull है वो सन को अकेले क्रॉस करती है without a nest. He was well acquainted, acquainted होता है familiar, परिचित होना. He was well acquainted with the fact that life is not easy, कि जो लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है. We have to make tremendous efforts, हमें बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने होंगे, efforts करने होंगे to face the hardships of life. The sons and daughters live their own lives. अब sons और daughters को अपनी लाइफ खुद जीनी है. As it is the dire need of time, क्योंकि ये समय की डिमांड है. हम बच्चों को अपने घर पे ही बिठा कर नहीं रख सकते. उनकी चिंता तो होती है पेरेंट्स को, लेकिन उनको घर पर तो नहीं बिठा रखते. उनको पढ़ने के लिए आगे कॉलेजेस में भी भेजना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी भेजना पड़ता है, जॉब करने के लिए बाहर भी भेजना पड़ता है. तो पेरेंट्स को भी काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने चिल्ड्रन के लिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. नाउ यू हैव टू रीड द लेसन thoroughly from the text, line to line explanation after listening the video.